آج ہمارے ساتھ تحریک پاکستان کے ایک ہیرو صوفی اللہ عطا جلندری صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو میں نے تینوں جگہوں میں حصہ لیا ہے۔ قائد اعظم صاحب آئے 43 میں جلندر شہر، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، تم ادھر کدھر ہو؟ کانگریس میں تھے تو ہمیں مسلم لیگ کا تو نام ہی نہیں تھا، بھائی باپ بہنوئی سارے، پھر ہم مسلم لیگ میں آ گئے۔ پہلے ہمارے 4-5 بندہ آگے ہوتا تھا تو پیچھے ہندو سے سارے 20-25 ہوتے تھے، دھوتی باندھ یہ رام رام کرتے رہے۔ تو یہ پاکستان تو سارا ہم نے بنایا ہے، رات دن پریٹیں کر کے، مارے کھا کے، جیلیں کاٹ کے، ڈنڈے کھا کے۔ یہ ہندو تو ایسے ہی پتہ نہیں کیسے فضول اتنا ملک لے گئے ہیں۔ بیٹے ہمارا جو تھا نا خاندان آدھے سے زیادہ وہ شہید ہو گیا، پریٹیں کر کے انگریزوں سے آزادی ہم نے لی ہے۔ یہ تو ابھی کہتے ہیں نا آزادی چاہیے، آزادی کون سی آزادی چاہیے؟ آزادی تو وہ تھی جو ہم نے لے لی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں، میں عدنان شمیر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تحریک پاکستان کے ایک ہیرو صوفی اللہ عطا جلندری صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم مانتے گئے اور پھر پاکستان کے قیام کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے گئے۔ انہوں نے صرف قیام پاکستان تک ہی تحریک پاکستان میں کام نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد 1965 اور 1971 کی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں ان کا کیا کردار تھا اور اس کے بعد 1965 اور 1971 کی جنگ میں ان کا کیا کردار تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں سر جلندر شہر کا رہنے والا ہوں، جلندر کی میری پیدائش ہے شہر کی۔ تو میں نے تینوں جگہوں میں حصہ لیا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب پہلے وہ بھی فوج میں تھے، انہوں نے دونوں جنگیں عظیم انہوں نے لڑی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں۔ تو پھر وہ ادھر لاہور میں جب آ گئے ریٹائر ہو کے، تو رات کو ہم پہلے ٹکا رام کی کوٹھی جاتے تھے، وہاں کانگریس میں تھے نا ہم، جی کانگریس میں تھے تو ہمیں مسلم لیگ کا تو نام ہی نہیں تھا۔ بعد قائد اعظم صاحب آئے 43 میں جلندر شہر، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، تم ادھر کدھر ہو؟ پھر ہم بھائی باپ بہنوئی سارے، پھر ہم مسلم لیگ میں آ گئے۔ تو ادھر پھر ہم نے نعرے مارنے شروع کیے کہ قائد اعظم صاحب کا کیا ہے فرمان، بنا کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا جی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ مگر عمر تو میری 16-17 سال تھی، مگر ایسے لگتا ہے جیسے میں 25 سال کا ہوں گا، کیونکہ میں وہاں پہلوانی کرتا تھا جلندر میں۔ پہلے ہمارے 4-5 بندہ آگے ہوتا تھا تو پیچھے ہندو سے سارے 20-25 ہوتے تھے، دھوتی باندھ یہ رام رام کرتے رہے۔ تو یہ پاکستان تو سارا ہم نے بنایا ہے، رات دن پریٹیں کر کے، مارے کھا کے، جیلیں کاٹ کے، ڈنڈے کھا کے، انگریزوں سے پاکستان تو ہم نے بنایا ہے۔ یہ ہندو تو ایسے ہی پتہ نہیں کیسے فضول اتنا ملک لے گئے ہیں۔ تو ملک تو ہماری محنت ہے، قربانی ہم نے دی ہیں۔ بابا جی آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں سے یا دوستوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے تحریک پاکستان میں جام شہادت نوش فرمایا ہو، یا اس کے بعد 65 اور 71 کی جنگ میں کوئی شہادت ہوئی ہو آپ کے عزیز و اقارب میں یا آپ کے کسی دوست کی؟ بیٹے ہمارا جو تھا نا خاندان آدھے سے زیادہ وہ شہید ہو گیا جب ان سے جنگ ہماری ہوئی ہے، ہندوؤں سکھوں سے، انگریزوں سے آزادی تو یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے؟ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، جب ابھی پاکستان بنا ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم نے بنایا ہے، پریٹیں کر کے انگریزوں سے آزادی ہم نے لی ہے۔ یہ تو ابھی کہتے ہیں نا آزادی چاہیے، آزادی کون سی آزادی چاہیے؟ آزادی تو وہ تھی جو ہم نے لے لی ہے۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ جب آزادی لے لی ہے تو بعد میں پھر قربانی ہمارے بھائی تھے، بھائی اور رشتہ دار ہمارے سامنے شہید ہو گئے، کٹ گئے۔ پھر وہاں سے ہم نکل آئے، گاڑی کا اندر کا حصہ ہی فل بھرا ہوا تھا، اوپر سے بڑا پہلے جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ سارے راستے میں کٹ گئی تھی، وہ صرف ہماری اسپیشل تھی، وہی گاڑی بچی تھی۔ تو پھر ہم جب پاکستان پہنچے، پاکستان بن گیا، تو پھر کیا جذبہ تھا؟ اپنی سرزمین پہ آ گئے ہیں، جس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے گزشتہ کئی سالوں سے، وہ چیز حاصل ہو گئی تھی۔ ہمارا جو خاندان تھا کٹ گیا، بھائی کٹ گیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے، ہمیں جذبہ تھا ہم ان کا ہندوؤں کا بیج نہ رہنے ختم کر دیں۔ ہندو وغیرہ کے جو یہ مکار لوگ ہیں، یہ مکار ہیں نا،
तो वो जज्बा यहाँ आके भी हमारे पास वही रहा। तो फिर 60-65 की जंग इधर आ गई लगी जब, तो उस वक्त भी हमें यही जज्बा था कि हम इनको ख़त्म करें जाके। तो जब हम गए ना इधर शालामार बाग, वहाँ इन्होंने आगे जाने नहीं हमें दे रहे थे। बहुत फिर दुनिया आपने हिस्सा लिया था 1965 की जंग में? वहाँ से फिर जब नहीं जाने देते थे, हमने एक शालामार के पीछे था मरूदों का बाग, उधर से हम सारे उधर बॉर्डर पे निकल गए। उधर जाके फौजियों के साथ शाने बेशाने मिलकर उनका साथ दिया है। तो ये बंगाली कौम बड़ी अच्छी लड़ने वाली थी, बंगाली इतने लड़ाकी कौम थी, ये हमारे पाकिस्तानी फ़ौज में थी। तो हमने नलाना मलाना जो भी कुछ, तो वहाँ बॉर्डर के बाटा कंपनी से थोड़ा आ गई, इतना रॉकेट पड़ा हुआ था कि हज़ारों के हिसाब से, जो चला भी नहीं हुआ था। वो इतने बुज़दिल थे, फेंक के भाग जाते थे। बॉर्डर पे गए थे आप? बॉर्डर पे गए तो फौजी हमें कहते थे, यार तुम इधर के थे, तुम्हें सिर पे कुछ नहीं रखा हुआ, क्या बात है, तुम्हें अपनी जान? हमने कहा नहीं चाहिए, हम तो इनको मारेंगे। हमें वही जज्बा था जो इन्होंने जो हमारे साथ की थी। हम चाहते थे हम बॉर्डर के, हमारे पास असला हो तो हमें इनको मारे, मगर वो जो गन्ने लगी थी तोपें वगैरह, तैयारा शिकन वगैरह तोपें, वहाँ हम खुद खड़े रहे। तो बाबा जी इसमें एक जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये भी थी कि आपके अजीज़ व अकारब को जब वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त उनको भी शहीद किया गया था, और शहीद करने वाले भी वही लोग थे। और 1965 में फिर भी हमारा मुकाबला 1900 था, 1900 हमारी जंग छिड़ गई थी। तो इसी वजह से ज़्यादा जज्बा था या वतन की मिट्टी के लिए ज़्यादा खून खौलता था? क्या सूरत हाल थी उस वक्त, और अवामी जज्बात क्या थे? लोगों का रहन सहन और कारोबार, ये किस तरह से सरगर्मियाँ चल रही थी? वो ऐसे चल रही थी। एक तो जज्बा ये भी था कि इन्होंने हमारे ख़ानदान शहीद हमारी आंखों के सामने किए हैं। तो दूसरा ये है कि हम अपना वतन जो है ना पाकिस्तान, इसको बनाएंगे अलहदा। क्यों कि जब ये पाकिस्तान की आवाज़ आई ना, मैं रेडियो एक ही होता था जलंधर में हमारे शहर में, तो मैं रेडियो के पास ही बैठा था, निगल पॉलिश का काम मैं करता था वहाँ। तो उसमें पहली आवाज़ आई है कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली तक बन गया है। अच्छा, दिल्ली तक बन गया है। तो मैं घर गया हूँ, भागा, मैंने कहा ये सामान खोल दो, आराम से बैठो, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। कोई थोड़ी देर हुई है तो उन्होंने कहा ये लाहौर तक रह गया पाकिस्तान। जब लाहौर तक रह गया तो उन्होंने फिर जो कत्ल गारत की है ना, वो अल्लाह जानता, ये हम जानते कि हमें ज़िंदगी है अभी है या नहीं है। इसीलिए मैं अपने आप को कारकुन तरीके पाकिस्तान, ये जो है ना गाजी जलंधरी कहलाता हूँ, कि हमने कई जगह जो देखी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। तो इस सन 65 में भी अल्लाह ने बचाया है, उनके साथ पूरा फौजियों के साथ शाने बेशाना खड़े रहें। ये पाकिस्तान से हमें इसीलिए मोहब्बत अभी तक है कि मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, बताता हूँ कि ये पाकिस्तान कैसे बना है। ये आसिम मनीर साहब जो है ना, जो चीफ़ आर्मी हैं, इन्होंने भी कई दफ़ा कहा, चीफ़ आर्मी साहब ने, कि नई नस्ल को बताओ कि ये पाकिस्तान कितनी मुश्किल बना है, कितनी मेहनत से बना है। तो अभी तक किसी को पता नहीं कि कैसे बना है। बल्कि एक कॉलेज में गया हूँ, वहाँ MA BA की लड़कियाँ पढ़ रही, मैंने लड़कियों को बुलाया, मैंने कहा बेटे बात सुनो, क़ायद आज़म साहब कौन थे, जानते? कहते मुझे पता है। तो बाद में कैसे, कहती वो 1000 के नोट के ऊपर जिसकी तस्वीर है वो क़ायद आज़म है। मैंने कहा आगे बताओ, कहती आगे नहीं मुझे पता। तो प्रिंसिपल वहाँ से बैठी थी, वो कहने लगी तुम BA की स्टूडेंट है, तुम्हें पता नहीं? वो क्या, उसने आगे से जवाब दिया, ना उन्हें किसी ने पढ़ाया है ना बताया है, तो इसलिए वो चुप कर गई। किसी को पता ही नहीं कि ये पाकिस्तान बना कैसे, कितनी कुर्बानियों से। हमारी तो आंखों के सामने हेड लिए होते थे, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता था, हेड समेत ही गर्दन काट के वो गई जिसने भी कहा पाकिस्तान बनाएंगे। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने कितनी जगहों से बचाया है। तो बाबा जी 65 की जंग में आपने चंदा भी इकट्ठा किया था पाक अफवाज के लिए? हाँ, मेरे पास था जी बैलन हावल का अमेरिकन था प्रोजेक्टर, वो हमने जाके स्कूलों में चलाया। उस वक्त ये हमारी हुकूमत भी गरीब थी, फ़ौज भी गरीब थी, किसी भाई इतना पैसा तो होता ही नहीं था। हम लोग भी साल के बाद एक जोड़ा मिलता था। तो वो मैंने सुहावे गया हूँ, वहाँ यासीन था, कर्नल यासीन, उसके साथ मिल के
उधर चंदा इकट्ठा किया 1-1 रुपया टिकट लगा के। वो चंदा के फिर स्कूलों में मैंने, ये ग्वाल मंडी स्कूल है इस्लामी स्कूल, उसमें मैंने कुछ 400-500 बच्चा इकट्ठा किया। उधर उनसे 100-100 रुपये ना, 1-1 रुपया टिकट, 500 बच्चा, वो भी चंदा इकट्ठा करके फ़ौजियों के लिए भेजा है। इस मुल्क के लिए तो हमने यहाँ आके बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सन 65 में तो वो फिर उन्होंने जब सिखों हिंदुओं को पकड़ के लाए ना बॉर्डर से, तो पीछे हाथ उनके बांधे हुए सबको ट्रकों पे भर भर के ले गए। फिर हिंदू बुज़दिल हो गए ना, फिर भागना शुरू होते, फिर उन्हें पकड़े पीछे हाथ बांधे हुए ट्रकों पर रखा, छावनी जाके बंद कर रहे थे। वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर वहीं से मैं बॉर्डर पे गया हूँ, बाटा कॉम्पनी से आगे, वहाँ इन्होंने बम फेंके हैं, वो इनसे चले ही नहीं, रॉकेट नहीं चले, साबित के साबित फेंक के भाग गए। इतनी बुज़दिल कौम है। तो बाबा जी, आप तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, इसके अलावा आपने 65 की जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया, पाक अफवाज के लिए आपने चंदे इकट्ठे किए, तो उसका कोई सिला गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया कि आप पाकिस्तान के बड़े हीरोज़ में से हैं, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, आपका ख़ानदान शहीद हुआ, तो कोई सिला मिला है? बाजी सिला ये मिला है कि 30-31 न्यूज़ हैं प्रोग्राम वाले, वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं और चला लेते हैं। तो एक गोल्ड मेडल मुझे दे दिया, गोल्ड मेडल गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर ने दे दिया है, वो गले में डाल के फिरता रहता, बस वो इनाम दिया है। जैसे डॉक्टर कदीर को इन्होंने जेलों में रख के मारा है, ऐसे मुझे भी कुछ इनको परवाह नहीं कि कौन गाजी है कौन नहीं है। किसी ने दोनों तीनों जगहों में हिस्सा लिया। हमें एक जज्बा था उस वक़्त कि हमने इनसे मुकाबला करना है। इन्होंने हमें मुल्क पाकिस्तान चाहिए, जो हमें कायद आज़म साहब ने बताया था कि एक मुल्क हमें इस्लामी बना रहा है मुल्क, वो मुल्क हमें पाकिस्तान तुम्हें हमने बनाना है, तो उसके पीछे लगे रहे। आखिर फिर यहाँ वाल्टन कैंप है छावनी में, वाल्टन कैंप आके गाड़ी ने उतारा, तो हमने शुक्र का कलमा पढ़ा कि हम पाकिस्तान आ गए हैं। तो बाबा जी, फिर अब आप बूढ़े हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से गुजारा चल रहा है आपका? गुजारा ऐसे चल रहा है कि रिश्तेदार अजीज़ हैं, कोई कुछ देश छोड़ता है, कोई कुछ देश छोड़ता है, तो अल्लाह ताला गुजारा कर रहा है। बेटे भाई जो थे वो तो सारे उधर ही शहीद हो गए, 2 बेटे थे वो इधर नमूने से फौत हो गए। अब हम मियाँ बीवी दोनों रहते हैं, बेटी सिर्फ एक है, वो फैसलाबाद में है, तो बाकी अल्लाह के रहम करम पे हैं, अल्लाह ताला ख्याल रखता है। तो जो यहाँ इंटरव्यू लेने आते हैं वो भी हमारे बेटे हैं, हम उन्हीं को बेटे समझ के गुजारा कर रहे हैं। हालांकि 14 अगस्त को 30-31 चैनलों ने दिखाया है, मगर किसी के कान में जूं तक नहीं हिली कि ये कहाँ से खाएगा, कहाँ बिल देगा, गवर्नमेंट को पता ही नहीं। बस गोल्ड मेडल दे दिया है, गोल्ड मेडल पा के ये मैं इसको गोल्ड मेडल पा के ना इसको फिरता रहता हूँ। जब कभी प्रोग्राम लेने आते मैं पहन लेता हूँ, मुझे पता कि यही पाकिस्तान है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अल्लाह ताला ने एक हमें दे दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ आर्मी, अल्लाह ताला ने ये हमें तोहफ़ा दिया है। आर्मी चीफ जो है ना आसिम मुनीर, ये अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है। उसकी ज़बान से मैं सुनता हूँ कि आने वाली नस्ल को बताओ ये पाकिस्तान कैसे बना है। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, तहरीक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्होंने रोल अदा किया उसमें। इसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से हैं। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 1965 की जंग हुई, उसमें हिस्सा लिया, 1971 की जंग हुई, उसमें हिस्सा लिया, यहाँ तक कि 65 की जंग में बॉर्डर पर भी लड़ते रहे। और फिर इसके अलावा पाक अफवाज के लिए चंदा भी इकट्ठा करते रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के लिए सब कुछ करते रहे। लेकिन आज जब वो बुढ़ापे में हैं तो वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वो पाकिस्तान एक मुल्क जिसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनको कोई सिला नहीं दिया गया। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि बुढ़ापे में
ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کی جائے. جبکہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ سے یہ ملاقات کے خواہش مند ہیں. یہ پاکستان کے ہیرو ہیں, یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان لے کر دیا اور انہوں نے پاکستان لینے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں. مزید اس طرح کی سٹوریز کے لیے آپ پاکستان خبر کو لائک, فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.